অসমত আহি প্ৰৱেশ কৰা পশ্চিমবংগৰ বিজেপি কৰ্মী অসম বাংলা সীমান্তৰ ৰণপাগলিত উপস্থিত হয় চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল জগদীপ ধনখৰ। পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনী হিংসাৰ বাবে আশ্ৰয় বিচাৰি ধুবুৰী ৰণপাগলিত আশ্ৰয় লৈ আছে পশ্চিমবংগৰ নাগৰিক। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ একাংশ কৰ্মীয়ে বিজেপি দলৰ কৰ্মীৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ তথা বিজেপি কৰ্মীৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিয়াৰ ফলত অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ ৰণপাগলিত আশ্ৰয় লৈ আছিল। আৰু আজি সেই সকল বিজেপি কৰ্মীৰ ওচৰত আহি খবৰ লয় ৰাজ্যপালে। ৰাজ্যপালক ওচৰত পাই হুকুকাই কান্দিলে বৃদ্ধ আৰু মহিলাসকলে। ৰাজ্যপালৰ ভৰিত ধৰি কাটৰ অনুৰোধ জনায় যে অতি শীঘ্ৰেই আমাক ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। এনেদৰে কান্দি কান্দি কাটৰ অনুৰোধ জনায় এইসকল বিজেপি কৰ্মীয়ে। লগতে তেওঁলোকে কয় ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ ব্যৱস্থা কৰক বুলি। পাছত ৰাজ্যপালে লোকসকলৰ বুজ লৈ আশ্বাস দিয়ে আৰু অতি শীঘ্ৰেই পৰিস্থিতি ঠিক হ'ব বুলি কয় আৰু ঘৰলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থাও কৰা হ'ব বুলি ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে তেওঁলোকক জনায়। পিছত অসম চৰকাৰক আৰু ধুবুৰী প্ৰশাসনক লোকসকলৰ যত্ন লোৱাত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে আৰু পশ্চিমবংগৰ মমতা চৰকাৰক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জগদীপ ধনখৰে। To everyone in the West Bengal, I have come here not to just meet them. I have come here to convey to them, please go back, because if one becomes so shattered and hopeless by state of affairs and moves to another state, it is a great challenge to that state's existence. We have seen such kind of devilish situation in one state of the country. We know what happens when people left that state. The problem is still a big scare on us. I don't want that to happen. I have come here to give them confidence, to convey to them, I will ensure their safety. I have come to know from people here, senior people here, that to the extent they are concerned, it's a localized area, so easy to rehabilitate, so easy to compensate, so easy to engage into area domination, so that there is confidence. I have decided to take the bullet on my chest and urge them with folded hands, please go back to West Bengal. As a matter of fact, the problem I faced with is not people who have left the state. Thousands of people have left their homes. They are moving here and there in West Bengal with relatives or otherwise. I appeal to them also, go back to your place. Problem is, second wave has started, like COVID. It is being circulated that was the first onslaught. Now there will be second. And second onslaught is, they are being forced to part with their property on extensive scale. First, you sell the property, be tenant. If you want to do business, pay some kind of a tax, not sanctified by law or constitution. कोई भी व्यक्ति अपने प्रांत को कब छोड़ता है? वो तब छोड़ता है जब वो सुरक्षित महसूस नहीं करता है, जब वो इस आकलन पर पहुंचता है कि जो मेरे को बचा सकते हैं वो नहीं बचाएंगे, जब वो दूसरे निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संविधान के तहत कोई भी व्यवस्था मेरे को बचा सकती है, उसकी मैं मदद नहीं ले पाऊंगा, तब जाकर दूसरे प्रांत में शरण लेता है। ये मैंने आज सीन देखा है।
85 साल की महिला से लेकर नीचे की 2 पीढ़ियों तक के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मीडिया के माध्यम से सभी से आग्रह करूंगा, प्रजातंत्र हमें बड़ी मुश्किल से मिला है। लाखों लोगों ने अपनी आहुति दी है। इस प्रकार के वातावरण से इसको खतरे में न डालें। चूंकि मैं पश्चिम बंगाल की भूमि पर नहीं हूं, मैं और ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। आसाम की सरकार को पूरा साधुवाद। पश्चिम बंगाल से लोग आए, उनकी सही देखभाल की। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठतम अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, डिविजनल कमिश्नर हैं, स्पेशल डीजीपी हैं, डीएम हैं, एसपी हैं। उन सब के माध्यम से मैं आसाम की सरकार को आई विश टू कन्वे अ डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। और मैं ये आपको कहना चाहूँगा, मीडिया को एंगेज इनटू सोल सर्च, स्टीर योर कॉन्शियंस। जब रात भर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पास खबरें आती हैं कि लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, उन्होंने अपने समर्थकों को, खास तौर से महिलाओं को उकसाया कि सेंट्रल फोर्सेस का विरोध करें, यूटेंसिल से करें, अन्य माध्यम से करें। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज एंटीथेटिकल टू रूल ऑफ लॉ। दिस कांट बी काउंटिन्यूस। जो घटनाक्रम कूच बिहार में हुआ, जिस मुख्यमंत्री ने जेनोसाइड कहा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा, ज्यादा नहीं कहूंगा, मामला विचाराधीन है। और मुख्यमंत्री की चुप्पी, जब पूरा प्रांत रक्त रंजित हो रहा है, मेरे लिए परेशानी का सबक है। सर, वेस्ट बंगाल में एक कल्चर दिखाई दे रहा है। सुनिए, मीडिया से भी अनुरोध करूंगा, हमारा सोच पॉजिटिविटी का होना चाहिए, सुधारवादी तरीके से होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता टकराव टकराव टकराव। ये टकराव कब तक चलेगा? केंद्र से टकराव, राज्यपाल से टकराव, चुनाव आयोग से टकराव, सेंट्रल फोर्सेस से टकराव। ये भारत के संविधान की आत्मा के विपरीत है। कूच बिहार में मैंने क्या देखा, पूरे प्रांत में क्या देखा। और मैं आपको बताता हूँ, मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ। पुलिस का डर जनता के मन में इतना ज्यादा है कि थाने में जाने से डर लगता है। इतना ज्यादा डर है कि डर कर डर की बात नहीं कर पा रहे हैं। और आलम तो यहां तक है कि जनता पुलिस से डर रही है और पुलिस रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता से डर रही है। कानून व्यवस्था कहां गई है? हम बहुत बड़े खतरे में हैं। इस खतरे से एक ही तरीके से बचा जा सकता है, सहभागिता हो, सकारात्मक रवैया हो, और खास तौर से मीडिया अपना काम करे। रात को जब देखता हूँ, सुनता हूँ लोगों की बात, दुनिया भर के लोग मुझे जो बंगाल से प्रेम करते हैं, बंगाली मूल के हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की वो बात याद करते हैं, When mind is without fear, head is held high। मैं तो माइंड विदाउट फियर है और सर है वो शर्म से झुक है। ये जब रात भर सुनता हूँ, जानकारी लेता हूँ, प्रातः क्या देखता हूँ, मीडिया की कार्यस्थल
all is well. Feel good factor. इतिहास मेरे को जज करेगा इस गवर्नर, मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय को जज करेगा चीफ मिनिस्टर, पश्चिम बंगाल की ब्यूरोक्रेसी को जज करेगा पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और वो आपको भी जज करेगा। अपने लिए मौका है, इतिहास को कलंकित नहीं करें। ये ऐसा मुद्दा है जिसमें किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी राजनीति करने का अधिकार नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री को सत्ता में आने के बाद मुबारकबाद दी, आगाह किया, चेताया। आश्चर्य की बात है वो कहीं नहीं गई, पांव में चोट थी, कसर बाकी नहीं रखी। चुनाव में उनका अधिकार था, सम्मान करता हूं। গোলকগঞ্জৰ পৰা সাজিদুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাতঃ টাইম। A to Z, a departmental store. দক্ষিণ কামৰূপৰ ব্যৱসায়িক প্ৰাণকেন্দ্ৰ বিজয়নগৰৰ HDFC বেংকৰ সমীপত অৱস্থিত এই ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰখনত চলি আছে ৰেহাই মূল্যত বহুতো আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী। আহক এবাৰ এই ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰলৈ আৰু আপোনাৰ ব্যৱহৃত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰক।